Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मसून और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों होना चाहिए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी को नहीं करना चाहिए इफ्तिताह। शहर हैदराबाद में आईटी के छापे। कोहिनूर ग्रुप के अलावा एक और मारूफ रियल एस्टेट कंपनी की जायदादों की ली गई तलाशी। लाल दरवाजा सिम्हा वाहिनी मंदिर की 10 करोड़ से की जाएगी तरक्की। ओप्पूगुड़ा में मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल की संग बुनियाद तकरीब से वजीर तलसानी का ऐलान। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के असेंबली नामपल्ली का दौरा। 13 करोड़ 68,50,000 रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। कोमरम भीम आसिफाबाद में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी और तरबियती प्रोग्राम। दारुल अंसार ट्रस्ट जिला हज सोसाइटी के जिम्मेदारान ने आज़मीन को दी मुबारकबाद। और अब खबरों की तफसील। सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों होना चाहिए। उन्होंने पार्लियामेंट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए मोदी हुकूमत के सामने एक शर्त रखी है, जिसके मुताबिक अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है तो ऐसी सूरत में मजलिस पार्टी इस तकरीब में शिरकत करेगी। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इसका इफ्तिताह नहीं करना चाहिए। No, I am of the opinion that what the opposition parties, the so-called opposition parties, the so-called secular parties, who in their view I am an untouchable, political untouchable, they are saying president, but they forget, they are talking about Article 79. I am talking about Article 53(1), which says the executive power of a union shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. So president is part of executive. That is why I have been saying that it is the speaker of the Lok Sabha who is the custodian of the parliament, and the theory of separation of powers clearly tells us that legislature is independent of executive and judiciary, and in the theory of separation of powers is part of the basic structure of our constitution. The Prime Minister should not enter into the domain of legislature. The judiciary cannot enter into domain of legislature, and vice versa, legislature cannot enter into domain of executive or the judiciary. That is part of the basic structure of the constitution. So I still hope that the Prime Minister of this country would show his large-heartedness, will show his love for the constitution. As a true constitutionalist, if he is, then he should allow the Lok Sabha speaker to inaugurate the new parliament. And if he does, then of course MIM will be there. But if the parliament is hell-bent on inaugurating because he wants to inaugurate everything, because the BJP believes that nothing happened before 2014, if the Prime Minister does that, then we will be compelled to not to attend that function. But please remember that in 2019, the first all-party meeting which was held after the Lok Sabha results had come out, I had demanded that a new parliament building should come up, and I am sure that the Lok Sabha or the Prime Minister office must be having those minutes,
आई हैड रेज्ड दिस इशू। देखिए, इलेक्शन के लिए तैयारी करना ये एमआईएम की फितरत में नहीं है। आवाम की खिदमत करना 24 घंटे ये एमआईएम की मिजाज में है, ये एमआईएम की सोच में, एमआईएम की फितरत है। इसीलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर इतना बड़ा नहीं है दारुस्सलाम की तरह, जहां पर हफ्ते में 6 दिन बगैर किसी की रोक टोक के 6-7 एमएलएज, 1 एमपी, 2 एमएलसी, पूरे कॉरपोरेटर्स, एमआईएम के मेंबर बैठे रहते, आवाम की खिदमत के लिए। जनता आती यहां पर, जनता दरबार में अपना काम करा के जाती। तो इलेक्शन की तैयारी वो पार्टी करते हैं जो 4.5 साल सोते रहते हैं, आवाम की खिदमत नहीं करते, और इलेक्शन से 6 महीने पहले, जैसा हम उर्दू में हैदराबाद में बोलते बासी कड़ी को उबाल आ गया, तो उस तरह के काम करते। हम लोग 5 साल दबा के देख को गर्म रखते। महकमा इनकम टैक्स के हुक्काम ने आज शहर हैदराबाद में तकरीबन 30 मकामात पर तलाशी ली। इन छापों में आईटी हुक्काम ने शहर की नामवर रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को निशाना बनाया। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक आईटी हुक्काम ने कोहिनूर ग्रुप के अलावा एक और मारूफ रियल एस्टेट कंपनी की जायदादों की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि आईटी हुक्काम ने कोहिनूर ग्रुप से वाबस्ता मैनेजिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के घरों और दफातर की बारीक बीनी से तलाशी ली। शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में अपनी वसी कार्रवाइयों के लिए मशहूर कोहिनूर ग्रुप कंपनी सरकारी ज़मीनों से मुतालिक मंसूबों में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने की वजह से शक के दायरे में आ गई है। जारी छापों के एक हिस्से के तौर पर आईटी हुक्काम दस्तावेज़ात की मुकम्मल जांच कर रहे हैं और कोहिनूर कंपनी के तमाम दफातर में आमदनी की तफसीलात तलब कर रहे हैं। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया कि पुराने शहर के इलाके लाल दरवाज़ा सिम्हा वाहिनी मंदिर में 10 करोड़ की लागत से तामीरी तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। ये बात वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने चन्नागुट्टा हल्के के तहत उप्पूगुड़ा में महाकाली मंदिर के करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल की तामीराती कामों के लिए संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब के दौरान कही। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर फ़हाद बिन अब्दुल समद, मिर्ज़ा सलीम बेग, साबिक़ उप्पूगुड़ा कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद के अलावा BRS मुकामी क़ायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR रियासत के तमाम तबक़ात के लोगों को खुशखुर्रम देखना चाहते हैं। उन्होंने उन सियासी पार्टियों से अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया जो लोगों में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। गंगा जमुना ధైర్యం ఒకప్పుడు మీకు అందరికీ తెలుసు నిజాం గవర్నమెంట్ లో మన తాతలు వాళ్ళ తండ్రులు వాళ్ళ చరిత్ర తెలుసు, వాళ్ళు మన తల్లిదండ్రుల చరిత్ర చెప్పిండ్రు। ఆ రోజు లాల్ దర్వాజా దేవాలయానికి మొదటి బోనం ఎవరు తీసుకొస్తుండే? నిజాం తీసుకొస్తుండే। అటువంటి చరిత్ర ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ शहर నీకు హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా అందరం కలివిడిగా కలిసిమెలిసి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మనకు 1947 ఫ్రీడమ్ ముందు అందరూ కలిసి కొట్లాడే దేశం కోసం। కానీ ఈ మధ్యన మీరు చూస్తున్నారు హిందూ ముస్లిం గొడవలు పెడదామని చాలా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి। ఎవడు ఏకాన్ని ఇచ్చినోడు కాదు, ఎవడు మన కోసం ఆలోచించి చేసినోడు కాదు। మీరు కొట్లాడుకొని రావండి, కర్ఫ్యూలు పెడతాం, మన పిల్లలకు మన కుటుంబాలకు ఇబ్బంది పెట్టాలనేటువంటి ప్రయత్నం తప్ప గొప్ప సంకల్పం తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని। 24 గంటలు కరెంట్ వస్తుందంటే ఢిల్లీ నుంచి కూడా వచ్చి చేసిండా? మీరు దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, 24 గంటల కరెంట్ ఏటా ముందు చూపిస్తాడు ఎవడన్నా? చూపాడు। డ్రింకింగ్ వాటర్ మీకు ఒకప్పటి పరిస్థితి మీకు తెలుసు, ఈ రోజు పరిస్థితి మీకు తెలుసు। ఈ రోజు అద్భుతమైనటువంటి రోడ్ కనెక్టివిటీ 2014 తర్వాత మీ ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో రోడ్లు చూడండి। మాంకాళి జాతరని బేస్ చేసుకొని ప్రతిసారి ఉమ్మడి దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి మరి నాయకులతో మాట్లాడి కొన్ని కోట్ల రూపాయల డెవలప్మెంట్ చేసింది మనం, మీరందరూ సాక్ష్యం। దేవాలయాలకు మాంకాళి జాతర బోనాలు వస్తున్నాయంటే ఒక్కొక్క దేవాలయానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చినోడు ఈ దేశంలో ఉన్నాడా? చూపిస్తారా?
ఈ మతాల గురించి దేవుళ్ళ గురించి మాట్లాడేటోడు రూపాయి ఇచ్చిండా ఇయ్యడాడు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली नामपल्ली में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। आज सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली नामपल्ली में 13,68,50,000 रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अवाम ने जगह जगह असदुद्दीन ओवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया। इस दौरान नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, MLC मिर्जा अहमद बेग, मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुतल्लिका महकमों के अहदेदार और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बस साइड जाओ, बैठा ना भाई, इधर आओ। अहमद भाई देखो पीछे हट जाओ। अरे छोड़ो जी, नहीं भाई थोड़ा कैमरा पीछे लो। नहीं भाई अरे भाई फोन नीचे कर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज EE ऑफिस पर एक जायजा इजलास में शिरकत की। इस इजलास में EE, GHMC के दीगर आला ओहदेदार और मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के में मानसून से पहले जो डिस्ट्रिक्टिंग का काम होता, उस ताल्लुक से संतोष नगर वार्ड ऑफिस में आकर यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और दूसरे इंजीनियर से तबादला ख्याल थे, क्योंकि अब के साल टेंडर जो लिया गया है, गुत्तेदार जो डिस्ट्रिक्टिंग का काम कर रहे हैं, इंतहाई जो सो नाकाफी है काम वो, और उनसे हो रहा भी है गुत्तेदार से 1 करोड़ चिल्लर के आज कोई टेंडर लिए और वक्त पे लेबर नहीं आ रहा है। अब ये आलम है तो बारिश के दिनों में क्या आलम रहेगा। एक अहम मसला है डिस्ट्रिक्टिंग का, और याकूतपुरा असेंबली हल्के में नालों की कसरत है। डिस्ट्रिक्टिंग टाइम टू टाइम कराना बेहद ज़रूरी है, वरना पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पूरे ऑफिसरों से को पाबंद किया गया कि डिस्ट्रिक्टिंग के काम में इजाफा किया जाए, तेज़ी से काम किया जाए, लेबर को उसमें मुकर्रर करके जो गुत्तेदार अलर्ट जिसको अलर्ट हुआ नहीं बात कर रहा मीटिंग में, उसको वार्निंग दिए कि टाइम टू टाइम पूरे कंप्लेन अटेंड करना, क्योंकि उनके अमाउंट के लिहाज से जितना लेबर अब रख रहे हो पूरे याकूतपुरा असेंबली के लिए नाकाफ़ी है। और ऐन बारिश के दिनों में हमको तकलीफ होंगी, कहीं भी डिस्ट्रिक्टिंग बराबर नहीं होंगी। इसके ऊपर सख्त एहतजाज करें। ये जो नया सिस्टम निकाले हैं कि पूरे असेंबली हल्के को एक गुत्तेदार, ये इंतहाई नुकसानदेह है। दूसरे हल्कों की तरह इसको भी हमेशा जैसा करते वैसी करना तो काफ़ी काम हो सकता है। इसमें मजीद ये काम उनके लिए हम 1 हफ्ते का मोहलत दिए। अगर उसमें ये लोग काम में तेज़ी पैदा नहीं करेंगे तो कमिश्नर बुर्जा के पास जाके नुमाइंदगी करेंगे, उनके इल्म में लाएंगे। आवाम को मुश्किलात है, उसको दूर करने के लिए ये टेंडरों में मजीद इजाफा किया जाए। शुक्रिया। हल्के असेंबली कारवान से मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज GHMC के अहदेदारों, डिप्टी EE रामकृष्णा, AE उदय के हमरा, नानानगर डिवीज़न हकीमपेट इलाके में रैंप, रॉक कटिंग, फ्लोरिंग और रेलिंग के तामीरी कामों का मुआयना किया। वाज़ेह हो कि मजलिस पार्टी की कामयाब नुमाइंदगी पर रिहायशियों की सहूलत के लिए 80 फुट ग्राउंड लेवल से ऊपर एक रैंप मंजूर किया गया है। आज रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के इस दौरे के मौके पर उनके साथ नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, GHMC के अहदेदार, मुकामी मजलिस कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट लैंड प्रोटेक्शन समिति के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टी मीटिंग सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सर्वे सत्यनारायण, TJS लीडर प्रोफेसर कुदंडाराम, लैंड प्रोटेक्शन समिति के चेयरमैन रापुला रामुलू और दीगर ने शिरकत की। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर खैरुद्दीन सूफी कादरी की क़यादत में एक वफ़द ने आज किंग कोठी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा करते हुए आज़मीन हज को दी जा रही सहूलियात का जायज़ा लिया। अस्पताल के अमले की जानिब से आज़मीन के साथ ताउन ना किए जाने की शिकायत मौसूल होने पर उन्होंने आज मज़कूरा अस्पतालों का दौरा करते हुए डॉक्टर्स और आज़मीन हज से बात की। उन्होंने रियासती हज कमेटी को अस्पतालों में आज़मीन के लिए मुमकिन सहूलत को यकीनी बनाने का पुरजोर मुतालबा किया। बसूरत दीगर सेंट्रल हज कमेटी से शिकायत का इंतबा दिया। फर्स्ट फ्लोर पर इंतजाम किया गया है, तो अब इस पे जो है ना फर्स्ट फ्लोर पर आज़मीन हज सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कैसे जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। जबकि हमारी तेलंगाना सरकार आंध्रा की बनिस्बत 80,000 रुपये हर आज़मी हज से ज्यादा ले रही है। हमारे तेलंगाना सरकार के लिए शर्म की बात यह है कि आंध्रा की हुकूमत ने हर हाजी को 80,000 रुपये की मदद की है, जबकि वो हमारी रियासत से कमजोर रियासत है। लेकिन हमारे KCR साहब मुसलमानों को चॉकलेट देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और हर कदम पर मुसलमानों को धोखा देते हुए आ रहे हैं। रकम पूरी ली जा रही है लेकिन कोई यहाँ पर खातिर का इंतजाम नहीं है। और हमारे चेयरमैन साहब एयरपोर्ट के दौरे करते फिर रहे हैं, उनके रोजाना अखबारात में फोटो आ रही है। चेयरमैन साहब जरा यहाँ पर लाइन में ठहर कर भी आप फोटो को जो ना वायरल कीजिए। आप यहाँ के जो ना आज़मीन के तकालीफ को भी वायरल कीजिए। आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के एयर कंडीशन गाड़ी में आप हर दोस्त को जाके वहाँ के पौधा मार रहे हैं। आपको ख्याल होना चाहिए था। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस एरिया हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि 1,000 आज़मीन को यहाँ पर भेजा जा रहा, 1,000। और कल के तारीख में हम हमारे RMO से हम मुलाकात किए मैडम से, उन्होंने कहा कि 300 साढ़े 300 आज़मी की यहाँ पर टीका अंदाजाई हुई, जबकि 1,000 को भिजाया गया। तो 1,000 क्या करेंगे बताइए। लापरवाही है कि वो कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को दवाखानों में भेज रहे हैं। पानी के लिए जो ना हमारे हुज्जाद इकराम तरस रहे हैं। वहाँ पर किंगकोठी हॉस्पिटल में जितना सख्त वहाँ पर है, और वहाँ के भी जो ना मैडम से मैं बात किया और वहाँ के लोग बोले साहब पीने के लिए पानी नहीं है। तो क्या हमारी हज कमेटी इतनी बेबस हो गई है, लाचार हो गई है? हमारी हुकूमत क्या बिल्कुल जो ना दिवालिया निकल गया है? हमारे KCR साहब आपको मंदिरों में लगाने के लिए करोड़ों रुपए है और मुसलमानों के वास्ते कुछ भी नहीं है। ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए आप। हम जितना बर्दाश्त करते हैं, आपको कुर्सी पर बिठाना जानते हैं तो गल्ला पकड़ के उतारना भी जानते हैं। हम 14% मुसलमान हैं और आने वाला वक्त आपके लिए भयंकर साबित होगा। मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ हुकूमत तेलंगाना को, हमारे हुज्जाद किराम की लिए पूरी सहूलतें फराहम की जाए, पानी का इंतजाम किया जाए। सलीम साहब होश के नाखून लीजिए आप, वरना मैं सेंट्रल हज कमेटी में आपकी कंप्लेन कर दूंगा। मैं गुज़श्ता साल का आपको याद हूँगा, मैं आपके ताल्लुक से जो कदम उठाया था, फौरी हाजियों के लिए कुर्सियों का इंतजाम कीजिए, पंखे लगाइए, कूलर लगाइए, पानी का इंतजाम कीजिए और हर दवाखाने में 200 या 300 आज़मीन को भेजना चाहिए। हमारे हज कमेटी के मेंबरान कहाँ हैं? नाम के साथ लिखते मेंबर ऑफ हज कमेटी तेलंगाना कहाँ है? शर्म की बात है। अरे जो अल्लाह के घर के मेहमानों की खिदमत का जो है ना तुम ओहदा कबूल करके उनकी खिदमत के लिए नहीं आते, शर्म की बात है तुम्हारे लिए। आप तमाम जितने मेंबरान हज कमेटी है वक्फे से ये दौरा करना चाहिए और जहाँ पर जो तकलीफ हो रही है उन तकालीफ को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। जिला हज सोसाइटी कोमरम भीम आसिफाबाद के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर दारुल अंसार ट्रस्ट के रियासती जिम्मेदार हाफिज मोहम्मद रिजवान करीमनगर और अहमद हुसैन तेलंगाना हज कमेटी रुकन व मजलिसी सदर करीमनगर ने हज के फ़राइज़ और अरकान पर
तफसीली रोशनी डाली। मुफख्खम अहमद जिला सोसाइटी सेक्रेटरी और उनकी टीम ने आज़मीन हज के लिए तमाम इंतजाम किए। इस साल जिला आसिफाबाद से जुमला 42 लोग मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवाना हो रहे हैं। इस प्रोग्राम में कागज़नगर म्युनिसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन, कागज़नगर मजलिस पार्टी टाउन सदर अब्दुल मुबीन, हाफिज मोहम्मद रियाज व दीगर ने शिरकत की। हैसियत से आप लोग के नामों को दर्ज किए, अल्लाह का एहसान है। और मैं मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से और हमारे खुद की जमात की तरफ से और मेरे तरफ से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। और अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, अल्लाह आपका हज कबूल करे। और लाखों लोग अपने आंध्र प्रदेश इंडिया से एप्लीकेशन भेज चुके हैं। अल्लाह जिनको पसंद करे और उनको ही वहाँ पर बुला रहे। अल्लाह का गवर्नमेंट की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में 2024 में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से आज शेख रिजवान बादशाह को बल्दिया के कमिश्नर की हैसियत से तकर्री पर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर उनकी शालपोशी करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया। इस दौरान स्टेट जनरल सेक्रेटरी तौफीकुर रहमान वरंगल, सदर एम.ए. अजीज़, राज मोहम्मद, मोहम्मद अकबर, जुबैदा और मोहम्मद नज़ीर मौजूद थे। बाकायदा म्युनिसिपल कमिश्नर शेख रिजवान बादशाह ने तयख्खुन दिया कि बल्दिया की जानिब से मुमकिन काम अंजाम दिए जाएंगे। आदिलाबाद शहर में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई को मुनक्किद होने जा रही कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर्स सियासी कायदीन व अवामी नुमाइंदों के हाथों जारी करने का सिलसिला जारी है। सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख आदिलाबाद शाहिद अहमद तवक्कल की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी खिजर याफई की निगरानी में फेडरेशन के अरकान की मौजूदगी में आदिलाबाद म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और BRS अक़लियती क़ायद यूनुस अगबानी ने कॉन्फ्रेंस का पोस्टर जारी किया और कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग फेडरेशन का 28 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस है हैदराबाद में। हम तमाम साथियों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में जाकर जो है उसको कामयाब बनाएं और उर्दू के लिए आप जो साथी हैदराबाद में जो काम कर रहे हैं आपकी हम सताइश करते हैं और आगे और दूर तक जो सो उर्दू को लेके जाएं। पहली कौमी कॉन्फ्रेंस है ये, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग जाकर जो है उसको कामयाब बनाइए। मैं आदिलाबाद के साथियों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी उर्दू ज़बान को आगे ले जाना है, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचाना है। इसीलिए ये कौमी कॉन्फ्रेंस लगाई गई है 28 तारीख को खाजा मेंशन फंक्शन हॉल में जो है तो माफक टैंक के पास है ये, लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर इसको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से जो 28 तारीख को हैदराबाद में प्रोग्राम रखा गया है, मैं सबसे पहले तमाम सहाफ़ियों को मुबारकबाद देता हूँ। और इस वक्त उर्दू सहाफ़त की ज़रूरत भी है और सारी दुनिया जानती है कि उर्दू हमारे मुल्क की पहली ज़बान है और हमको इसको जिंदा रखना है। मैं अपनी तरफ से सारे उर्दू सहाफ़ियों को इस बात की मुबारक। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों होना चाहिए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी को नहीं करना चाहिए इफ्तिताह। शहर हैदराबाद में IT के छापे, कोहिनूर ग्रुप के अलावा एक और मारूफ रियल एस्टेट कंपनी की जायदादों की ली गई तलाशी।
लाल दरवाजा सिम्हावाहिनी मंदिर की 10 करोड़ से की जाएगी तरक्की। उप्पूगुड़ा में मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल की संग बुनियाद तकरीब से वजीर तलसानी का ऐलान। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया हल्का असेंबली नामपल्ली का दौरा। 13 करोड़ 68,50,000 रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। कोमरम भीम आसिफाबाद में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी और तरबियती प्रोग्राम। दारुल अंसार ट्रस्ट जिला हज सोसाइटी के जिम्मेदारान ने आज़मीन को दी मुबारकबाद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।